Hello students, welcome to this video. Students, in this video, we'll take a look on eligibility criteria for those who want to get registered themselves under the composition scheme. So let's take a look on it. As per section 10 subsection 2 of CGST Act, following taxable persons will be eligible for composition scheme. The very first is the person should not be engaged in the supply of services other than supplies referred to in para 6 clause B of schedule 2 of CGST Act, that is the service of supply of food for human consumption, supply of food for human consumption. Okay, other than this human consumption, बाकी के जो services है अगर वो supplies होते हैं तो वो person, वो taxable person is not eligible to get registered under this scheme. Thus, supplier of services other than food service are not eligible for this scheme. The second one, he is not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax under this act. Definitely, this should cover petroleum products and alcoholic liquor. If in addition to these products, he is making another supply, the composition scheme is not available. Then next one is, he is not engaged in making any interstate outward supplies of goods. That means what? The person who is making transaction on intrastate level, he is the only one who is eligible to get registered under the composition scheme. The next one is, he is not engaged in making any supply of goods through an e-commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of CGST Act, and he is not manufacturer of such goods as may be notified on the recommendation of the council. So some items like pan masala may be excluded. All registered person having same PAN must opt for composition scheme. इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी. ओके, सो इन ऑल व्हाट कि कंपोजिशन स्कीम अंडर रजिस्टर्ड करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है वो मैक्सिमम कौन नहीं कर सकता, ये बहुत कम मात्रा में बताना इजी था, इसके लिए वो उसी हिसाब से बताया गया है कि कौन इंसान है जो रजिस्टर्ड नहीं कर सकता. इसका मतलब कौन है जो रजिस्टर्ड कर सकता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में बताया जा सकता है. Now let's take a look on that is the manufacturers that are not eligible for the scheme. Basically यहाँ 3 क्राइटेरिया बताया गया है उन मैन्युफैक्चरर के लिए जो इस कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, which are that according to the custom tariff item 21050000, ये custom tariff item नंबर जो है ये पर्टिकुलरली रिलाई करता है या फिर रिलेट करता है आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस के साथ. सो आइसक्रीम में चाहो तो वो कोको पाउडर के साथ बना हो या कोको पाउडर के बिना बना हो, ये आइसक्रीम और उसके साथ अदर एडिबल आइस जो होता है वो सारा मैन्युफैक्चर अगर कोई बंदा करता है, कोई पर्सन करता है, तो वो इस कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है. One more thing is there, that is according to custom tariff item 21069020, and under this item pan masala is there. The product is pan masala. So कोई मैन्युफैक्चरर जो पान मसाला मैन्युफैक्चर कर रहा है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है. According to custom chapter 24, the tobacco and manufactured tobacco substitutes, वो मैन्युफैक्चरर भी इस कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दोज हु वांट टू रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम. लेकिन फिर भी अगर इसमें आपको लगता है कि कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए. नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन द मेरिट्स ऑफ द स्कीम. द वेरी फर्स्ट इज लिमिटेड कंप्लायंस. बहुत ज़्यादा इसको ना तो रिटर्न फाइल करने की नंबर ऑफ रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत पड़ती है. अदर वन इज लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी.
अगर हम लोगों ने टैक्स स्लैब रेट इसका देखा तो नॉर्मल जीएसटी टैक्स रेट के कंपैरिजन में ये टैक्स रेट बहुत ही कम है, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0.5 and it ends up to 2.5% on the turnover. Okay, so instead of standard rate of 18%, ये लोग सिर्फ 2.5% टैक्स पे करने के लिए ही लाइबल होते हैं. The third one is high liquidity. जबकि टर्नओवर पे या फिर नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेशन होने वाला टैक्स रेट कम है, तो डेफिनेटली इनका वर्किंग कैपिटल जो है उस पर आने वाला जो बर्डन होता है टैक्स लाइबिलिटी का, वो बर्डन बहुत ही कम मात्रा में होता है. दैट्स व्हाई देयर इज अ हाई लिक्विडिटी फॉर सच काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर और सच काइंड ऑफ डीलर हु रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम. Now let's take a look on the demerits of the scheme. The very first is limited territory for business. इन लोगों के लिए restrictions बहुत होते हैं कि कौन सा बिजनेस रन होता है जिसके लिए कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल है और कौन सा नहीं है. According to that, नो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स. जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करते वक्त बताया था कि अगर कोई डीलर या सप्लायर है जो कंपोजिशन स्कीम अंडर रजिस्टर्ड करता है, तो उसे टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ता बल्कि बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको लिखना पड़ता है दैट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग द टैक्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स. ओके, सो कंपोजिट डीलर होने के लिए वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो टैक्स देन देयर इज नो इनपुट टैक्स रिटर्न. ओके, देन द नो कलेक्शन ऑफ टैक्स, जैसे कि अभी बताया उसी तरीके से कि वो अपने कस्टमर से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता. Then the penal provision is there. As per the model GST law, if the taxpayer who has previously been given registration under composition scheme is found to be not eligible to the composition scheme, or if the permission granted earlier was incorrectly granted, then such taxpayers will be liable to pay the differential tax along with a penalty. Okay, so penal provision अगर समझो composition scheme डीलर के लिए बताया गया है, तो एक तो वो रॉन्ग ग्रांट हो जाता है. अगर रॉन्ग ग्रांट के साथ भी कोई प्रोविजन बताया गया है तो उसे पेनल्टी के साथ अलग टैक्स पे करना पड़ता है. And the last demerit for this composition scheme is not applicable to the e-commerce operator. I hope student you understand all the things. लेकिन फिर भी अगर कोई query है तो comment box में डाल दीजिए या फिर मेरे personal window पे ping कर दीजिए. आगे के वीडियो के लिए वेट कीजिए. तब तक के लिए thank you very much. Stay at home, stay safe. Thank you.